meiosis. But we will talk about this meiosis in A2. Okay? A2 में हम have a whole chapter which is related to this meiosis. So बेटे जो mitosis है actually it's it's a growth division. It's a growth division. Okay? Growth division का क्या मतलब है बेटे? इसमें हमेशा identical cells बनते हैं. Identical cells are formed. So अगर हम mitosis को देखें, so this is the parent, the number of chromosomes in a parent cell. So बेटे the number of chromosomes will remain the same, after this cell division. This is something very important. कि जो parent का 46 number of chromosome है, it will remain the same, in the offsprings as well. So mitosis is a growth division, but it is taking place everywhere in your body. आपकी बॉडी में हर जगह पे हो रही है माइटोसिस, ठीक है? बट ये जो मियोसिस है, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस हमेशा गैमीट्स बनते हैं. एंड बेटे जो गैमीट्स हैं, दे हैव अ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जस्ट टू टेल यू बेटे कि देखिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास हाफ रह जाते हैं. बट एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. The number of chromosomes 8 cells से 4 daughter cells बनते हैं, and here the number of chromosomes reduced to half. So we will just not talk about it. We will move to mitosis. अब बेटे मैंने लिखा है mitotic cell cycle, ठीक है? Mitotic cell cycle. इसका क्या मतलब है बेटे? Before this mitotic cell division will take place, the cell will go through a cycle. ठीक है? वो पहले एक साइकिल में से गुजरता है, then it will come to the cell division which is mitosis, right? अब बेटे जो हमारे पास mitotic cell division है, before starting up with it, we need to know the structure of chromosome. So बेटे one human cell has 46 number of chromosomes. अब बेटे ये जो 46 number of chromosomes हैं, that they are present right inside the nucleus. So अगर बेटे हम structure draw करें nucleus का, that nucleus is a double membrane bounded structure. ठीक है? तो जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम कल से ये chapter start करेंगे, तो you will get to know about it. So बेटे this is called as nuclear envelope because it's a double membrane. Inside बेटे we have this nucleolus. And you know that this nucleolus synthesizes ribosomes. ठीक है? उसके अलावा बेटे over here we have this thread-like material, and this thread-like material is called as chromatin. We cannot see these 46 number of chromosomes until and unless cell decides to divide. ठीक है? जब सेल सोचता है कि अब इसने माइटोसिस कैरी आउट करनी है, तो बेटे उसमें फिर क्या होगा? दैट हमारे पास क्या हो जाएगा? वी कैन सी दीज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अदरवाइज वी कैन नॉट सी देम इन द न्यूक्लियस. इन द न्यूक्लियस we just see a conspicuous part which is basically just chromatin, and this chromatin is actually a thread-like material. This is a thread-like material. अब बेटे ये जो chromatin है, it's a thread-like material, and you know that this chromatin is present inside the nucleus. बेटे at the time of cell division, chromatin condenses. बेटे condenses का क्या मतलब हुआ? Yes, बेटे condensation का मतलब है that it become thicker and shorter. Condensation, ठीक है? So the chromosomes, ये जो chromatin है, become thick and short. So chromatin condenses to make chromosomes. अब बेटे हमें ये पता है कि these chromosomes they contain the genetic information. अभी तक तो हमें यही बात पता है, ठीक है? We know that the chromosomes they contain the genetic information, and that genetic information is in the form of DNA. अच्छा जी, अब बेटे अगर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ
I make, I use the word that this is chromatin. ठीक है? Chromatin condenses to make a chromosome. ठीक है? Chromatin condenses to make a chromosome, and it will make 46 chromosomes which will only appear at the time of cell division. हम बेटे कैसे बनाते हैं? ये मैंने जो वर्ड्स लिखे, I just draw them. ठीक है? अब मैंने बेटे अगर हम एक क्रोमोसोम को देखें तो this chromosome is somewhat like this. ठीक है? इसमें बेटे ये जो पार्ट है, the central part, this is called as centromere. Centromere. You are not going to confuse it. बेटे मैंने centromere को एक separate अलग से पार्ट बनाया, but basically बेटे this centromere also contains DNA, है ना? ये जो condense करके बन गया सारा, ठीक है? जो condense करके बना, तो बेटे basically इसके पास क्या है? It has this DNA. इसके पास तो DNA है ना सारा. Do not get confused. मैं भी सारा दोबारा से ड्रॉ करूँगी, ठीक है? चलिए अब इसको भी हम DNA को छोड़ देंगे. Do not get confused about because of this. Chromatin condenses to make chromosomes. ठीक है? So we have two parts in the chromosomes. This one is called as centromere. और बेटे इसकी जो दोनों arms हैं, these are called as chromatids. ठीक है? मैंने दोबारा लिखी हूँ, आप लोग ताकि सही से लिख लें. This is called as chromatid. अब बेटे आपको क्या लगता है कि these are two arms or this is just one arm? ये जिसको मैंने क्रोमेटिड कहा, ये एक है या ये दो है? एक है, इसके साथ तो कुछ होगा. I want to know, क्योंकि I just want to know कि आपके पास पिछला कॉन्सेप्ट क्या है? These are two arms or this is just one chromatid? एक है, इसके साथ एक और होगा. एक और को मिला. एक है या दो है? एक है. ठीक है? So please कुछ बच्चे that they come up with the concept कि this is the center point and these are the two arms. और बेटे जब उनको ये क्वेश्चन आता है in multiple choice questions in MCQs, तो वो इसको कैसे कंसिडर करते हैं? Two arms. तो वो जब इन two arms को काउंट करते हैं तो they will triple times जो है ना वो नंबर को काउंट कर लेते हैं. So this is a wrong concept because this is just DNA which chromatin which condenses to make it. अब it is centromere because it has given a name because it has a special function. अब it यहाँ से यहाँ तक that this is one chromatid. ठीक है? Sometimes इसको हम chromatids भी कहते हैं, but this is count as one. और बेटे this is one DNA molecule. ये एक DNA molecule है. ठीक है? This is one DNA molecule, right? अब बेटे ये जो centromere है, what is the function of the centromere? The centromere is the site where spindle attaches. यहाँ पर spindle attach होता है, and बेटे it separates the chromosome. Not the chromosome. It separates the sister chromatids. Separate the sister chromatid. अभी मैं बताऊंगी sister chromatids क्या है. Just make a star on it and you will get clear about it. What is a sister chromatid? ठीक है? अच्छा, अब बेटे ये साइट जो है, this centromere, it contains DNA. DNA से ही बना है, but this DNA does not code for any gene. Centromere, ठीक है? Centromere, right? बेटे centromere जो है उसके पास DNA है, but that DNA does not code for any gene. तो can we use another word for it that it's a non-coding DNA? क्या मतलब है? बेटे देखो ये पूरे का पूरा DNA है ना, मैंने इसको पूरा बोला कि it's a DNA molecule. ठीक है? DNA which is present over here, they code for gene. ठीक है? लेकिन जो DNA सेंट्रोमियर में प्रेजेंट है, it does not code for any gene. जी. कोड का मतलब क्या है? कि उसके पास जेनेटिक कोड है. आपको पता है DNA 4 बेसिस से बना है.
thymine, guanine and cytosine. अब वो जो repeated units है ना adenine, thymine, guanine, cytosine के basically वो एक message है, ठीक है, which is present on the DNA. और वो जो message है उसको वो किसमें change होता है in a polypeptide chain. और वो जो polypeptide chain है वो आपकी प्रोटीन बनाती है. The whole human body is protein in nature. अगर डीएनए में कोड नहीं है तो उसका पर्पस क्या है? मैंने क्या पर्पस लिखा है? It's a site where spindle get attached. और यहाँ से जो क्रोमोसोम है, sister chromatids वो दो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. Now, so this DNA does not contain ATCG or It contains ATCG, it does not code for. but they do not code for any gene. मतलब वो कोई polypeptide chain नहीं बनाते, ठीक है? So मैंने यहाँ पे लिखा कि does not code for any gene. इसका मतलब है कि ये DNA क्या है? Non coding है. अभी और समझाती हूँ तो you will understand it. Non coding DNA, ठीक है? अच्छा, अभी हम दोबारा इसके ऊपर चलते हैं. अब बेटे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू लाइन्स दिखाई हैं, ठीक है? इस ब्लू लाइन के बाद ये व्हाइट एरिया आ रहा है, फिर से व्हाइट ब्लू लाइन आ रही है, व्हाइट. बेटे दीज आर ऑल जीन्स. ये सब क्या है? जीन्स हैं. लाइक इतनी लेंथ ऑफ द डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन जीन. मतलब यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन जीन. फिर ये जो मैंने ब्लू बनाया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड जीन. देन ये जो मैंने थर्ड बनाया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड जीन, राइट? क्योंकि ये जीन्स जो है दिस इज वन जीन, दिस इज सेकंड जीन. डीएनए जो है बेटे वो तो कंटिन्यूस है ना. डीएनए तो बीच में से कहीं से सेपरेटेड नहीं है, तो वो तो कंटिन्यूस है. So these are different genes which are present on the chromosomes. So now बेटे what is a gene? मैं दोबारा से क्रोमोसोम बना लेती हूँ. This is a segment of DNA is called gene. अब बेटे gene क्या है? Gene is coding for, or gene contain a code for, or it is coding for one particular polypeptide chain. और आपको पता है बेटे ये जो polypeptide chain है it will make a protein. So gene has a code for a gene. Okay? अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि ये वाली जो मेरी जीन थी दिस इज फॉर एग्जाम्पल फॉर मेलानिन. किसी को याद है मेलानिन क्या था? It's a skin protein which give color to your skin. और ये जिसमें नहीं होती वो लोग क्या होते हैं? Albinos, because they miss this protein. This is a protein which give color to your skin. अच्छा जी, एक और प्रोटीन की जगह बना लेते हैं और ये है हीमोग्लोबिन. ये वर्ड्स तो आते हैं ना, हीमोग्लोबिन. जी बेटा. मैम ये प्रोटीन जो आपने लिखा है जो कलर वाली है ये इनके बीच में जीन्स के बीच में जो क्या नहीं, दिस इज वन डीएनए सेगमेंट मैनुलिन which is coding DNA segment which is coding for the gene mammalian. Okay, ठीक है बेटे. अगर आप डीएनए मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें देखोगे तो क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और वो हर सेगमेंट जो है एक जीन को कंट्रोल कर रहा है, दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए. ठीक है. और बेटे वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस नहीं है, नहीं कि वो डिसकंटिन्यूस है. वहां पर मतलब वो जो कोड है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर मैलानिन. जैसे मैलानिन का कोड खत्म होगा तो ये जो व्हाइट जीन है उसका कोड शुरू हो जाएगा. फिर उसका व्हाइट वाले का कोड खत्म होगा तो हीमोग्लोबिन का कोड शुरू हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब बेटे हमारे पास हीमोग्लोबिन दैट इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. दिस इज अगेन अ प्रोटीन एंड दिस हर सेल में सारे के सारे ये नहीं, नॉट ऑल. देखो बेटे क्योंकि डिपेंड करता है सेल किधर है बॉडी. एग्जैक्टली. देखो बेटे हम सबके सब एक ही सेल से क्या बने हैं. ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है इट्स वन सेल. ठीक है. उस वन सेल में से पूरे का पूरा इंडिविजुअल क्या करता है? ग्रो करता है. ठीक है ना. देखो बेटे 23 आ गया फीमेल साइड से, 23 आ गया मेल साइड से. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्स्ट सेल बनता है. This cell contain 46 number of chromosome and this is what we call as zygote. अब इस zygote के अंदर बेटे कौन सी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है? माइटोसिस. और ये जो zygote है this will change into an adult. हम एक ही सेल से बने हैं. ठीक है. बट उसमें होता है क्या बेटे? स्पेशलाइजेशन.
स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे कि जो स्टेम सेल्स हैं, जो कि यहाँ पर जाइगोट में जो स्टेम सेल्स थे, दे गेट डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। तो बेटे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दे ओनली प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ अ प्रोटीन, वन टाइप ऑफ अ सेल, और दे ओनली प्रोड्यूस सर्टेन, जैसे आपके बोन मैरो के सेल्स जो है, आपके जो बोन मैरो के सेल्स है, दे विल ओनली प्रोड्यूस योर ब्लड सेल्स। कौन कौन से आपके ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वही प्रोड्यूस करते हैं ना, ये वहां पर वो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो डिफरेंट सेल जो डिफरेंट जगहों पे बॉडी बेटे में देखो, हमारे different 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे हमारी पूरी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, लेकिन जीन वहां पर वो वाली ऑन होती है जो वहां पर एक्सप्रेस हो रही होती है, ठीक है? यानी कि ऐसा जो चीजें मेरे सेल में ऐसी चीजें जो एक्सप्रेस, जैसे मेरे स्किन के सेल में खाली वो वाली जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैराटिन, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोलेजन, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेलानिन। मैम यानी कि लेकिन ये कैराटिन वाली जीन मेरी कई बॉडी की और पार्ट में सेल में होगी, हर जगह पे होगी, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? क्योंकि बेटे अगर ये जीन्स फॉल्टी हो जाए और ये अपने आप को डिफरेंट जगह पे एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? म्यूटेशन की वजह से। तो बेटे जीन्स, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे एक सेल के अंदर पूरी है। अगर आपको किसी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिसमें ये पता लगाते हैं कि किसने फोरेंसिक जो होता है समथिंग लाइक दैट, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो उसमें तो कैसे पता चलता है कि ये जो सेल है ये मेल को बिलोंग करता है, ये फीमेल को बिलोंग करता है? कोई भी आपका सेल है, ठीक है, स्किन का सेल है, हेयर है, यस, लेकिन जीन्स, specific genes हैं which are just express themselves in specific type of a cell. Not all the genes will express themselves at the same time in the same cell. ठीक है? इसलिए जब सेल स्पेशलाइज होते हैं, वो अपने ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनाते हैं, तो they just express few types of genes, not all. अच्छा, अब बेटे ये जो था मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे डीएनए सेगमेंट की, ठीक है? सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज जीन, और मैं आपको कह रही थी कि डीएनए के पास क्या है? जेनेटिक कोड है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है? जेनेटिक कोड किसके पास है? डीएनए के पास। और बेटे दैट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। कौन सी बेसिस है? 4 बेसिस है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और यही बेसिस बेटे अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती रहती है, एंड दे मेक डिफरेंट कोड्स, C, C, G, C, A, 3, 6, 4। अब बेटे जो हमारी ये 3 बेसिस हैं, ठीक है, ये जो 3 बेसिस है, यहाँ पर कोई भी 3 बेसिस हो सकती है। मैंने अभी यहाँ पर ATG लिखा। These 3 bases represents 1 amino acid. These 3 bases they code for 1 amino acid. कितने अमीनो एसिड्स हैं आपकी बॉडी में? 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं। और बेटे हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं? कितने लेटर्स हैं अल्फाबेट्स में? 26। उन 26 जो अल्फाबेट्स हैं उनसे हम कितने वर्ड्स बना लेते हैं? मिलियन एंड ट्रिलियन वर्ड्स। सो बेटे अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं तो आप सोचो कि इनसे कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और कितनी प्रोटीन्स बन सकते हैं, ठीक है? सो बेटे जो जेनेटिक कोड है ना, जो हमेशा जीन का जो कोड होता है which is responsible for one polypeptide chain, it is always present in a triplet code. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड अभी नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो ट्रिपलेट कोड का क्या मतलब है कि आपका एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड है वो कितना होना चाहिए? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 बेसेस, ठीक है? और जेनेटिक कोड जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोटीन है मेलानिन, वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और ये अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर रहा है और वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। जो AT लिखा है क्या? अच्छा, डीएनए याद नहीं है? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बात तो क्लियर है। और डीएनए कौन सी 3 चीजों से बना होता है? किसको याद है? जेनेटिक इंजीनियरिंग वो लेवल से अभी तो पेपर दिया है जी। अच्छा, जो डीएनए है ना बेटे, आपका डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब क्या है? राइबोस शुगर से बना है, ठीक है, विच इज अ 5 कार्बन शुगर।
जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, बेटे शुगर के एक तरफ आपका क्या अटैच है, फॉस्फेट, और एक तरफ आपका ये न्यूक्लिक एसिड अटैच है, ठीक है, जिसको हम बेस भी कहते हैं। और ये जो आपकी बेस है ये कितनी फॉर्म्स की है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, 4 तरह की बेस। जो ये जो पूरा बैकबोन है, जो मैंने उसका पूरा लेटर का जो बैकबोन है वो हमारे हमेशा शुगर और फॉस्फेट से बना होता है, और बेटे ये जो बेसिस है वो ये है सारे। जो क्या है वो क्या वो जो आपने वो हाँ, तो ये मैंने बेसिस ही बनाई, मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है, आई जस्ट मेड वन स्ट्रैंड, मैंने ये एक स्ट्रैंड बनाया है, आई डिड नॉट मेक द 2 strands. Am I clear now? This is a single strand of DNA. I'm sorry. ठीक है, ये single strand. जी नहीं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था उसका राइबोन्यूक्लियेज का, उसमें कितने अमीनो एसिड्स थे, 126 प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इंसुलिन में 9 है, इट डिपेंड्स कि कौन सी प्रोटीन बन रही है, मैं ये सब समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है। मतलब यहाँ से आपकी मैलानिन स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, इसके आगे जो अगला कोड है वो किसका है, फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब ये तो कोड यहाँ से कंटिन्यू रहेगा और वो अब अगला किसका आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का। एम आई क्लियर अप टिल हियर? अच्छा, अब जनाब बात हम करते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास। तो वो जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाउ दे आर प्रेजेंट इनसाइड सेल, उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बेटे जब ये 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स बनाते हैं, when they pair up they make 23 pairs, और ये जो 23 पेयर्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। बेटे होमो का क्या मतलब है, होमो का मतलब है ऑफ सेम शेप एंड साइज, जिसका सेम शेप है और सेम साइज है, होमो मीन्स सिमिलर। लोगस का बेटे GOUS है, होमोलोगस, इसका मतलब क्या है, लोगस मीन्स पेयर्स। सो बेटे क्रोमोसोम्स आउट ऑफ 46 जो क्रोमोसोम्स है which are of same shape and size, they make pairs। बेटे ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये डिफरेंट जगहों पे भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक ये मिडिल में ही प्रेजेंट होता है। आई जस्ट मेक 3 पेयर्स, तो 1 2 2 and 3, ठीक है। सो बेटे आई कैन नॉट मेक 23, सो आई जस्ट मेक 3 पेयर्स, और 3 पेयर्स में बेटे क्या हुआ कि जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे दे मेक पेयर्स, तो 23 पेयर्स आ गए। And within in pairs में you know that chromosomes which are of same shape and size they get together। अब इन क्रोमोसोम्स में से बेटे जो एक पेयर में से जो एक क्रोमोसोम है, it belongs to the maternal side। एक क्रोमोसोम belongs to the maternal side and the other chromosome belongs to the paternal side। एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक कौन सा है, मैटरनल क्रोमोसोम है जो पेयर के अंदर है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है डेफिनेटली हाफ सेट जो है वो मेल से आता है और हाफ फीमेल से आता है। सो बेटे इन दीज क्रोमोसोम्स one out of the pair, one chromosome is from the female side and the other one is from the male side, maternal and paternal, these are the 2 words which we use for them। अब बेटे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जीन लोकेशन है फॉर एनी जीन, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मैंने ग्रीन कलर की जीन बना दी और मैंने कहा कि ये जो मेरी एक ग्रीन जीन है, दिस इज फॉर आई कलर, हाँ, दिस इज फॉर आई कलर, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर ये वाली जो बनाई ग्रीन, इसको मैंने कहा कि दिस इज फॉर हेयर कलर, या नोज शेप हो सकती है, आई शेप हो सकती है, टेक्सचर ऑफ द हेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हेयर कलर की ले लीजिए, ठीक है। अब बेटे अगर आपने देखा तो मैंने दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन की पोजीशन है मैंने सेम बनाई है, हालांकि one chromosome belongs to the maternal side and the other one belongs to the paternal side। So बेटे the important thing over here is that gene location
the gene location for any given trait. ठीक है, आपका जो given trait है वो यहाँ पे मैंने कौन से दो लिए? For example, I have taken this eye color. ठीक है, मैंने eye color ले लिया. For example, eye color. So gene location for any given trait, for example, eye color is going to be the same on homologous pair of chromosome. ठीक है, called the gene locus. इसको हम क्या कहते हैं? जीन लोकस या लोसाई. इसका प्लूरल जो है वो लोसाई है और जीन लोकस और लोसाई. ठीक है, that is actually the gene location. एक ही बात है. ठीक है, there are 3 words just for one thing, right? So are you clear about it? कि you know कि जो gene location है for any given trait is going to be the same on both the pairs. ठीक है, अब बेटे हमारे पास 23 pairs थे. अब out of 23 pairs बेटे जो 22 pairs हैं they are of autosomes. 22 pairs autosomes के हैं. autosomes का बेटे क्या मतलब है? body chromosomes. मैंने सिर्फ आपके लिए ये लिख दिया, but basically we use the word autosomes for this. आपको समझाने के लिए लिख दिया body chromosomes. और autosomes बेटे if I underline it means this is very important. You will use the same word in the paper. ठीक है, autosome का बेटे क्या मतलब है कि it's a body chromosome. अगर आप देखो तो बेटे ये मेल और फीमेल में सेम है. कैसे कि हम सबके पास 2 आंखें हैं, 5 fingers हैं, we have 2 legs, we have 2 arms, and that we have the same position of heart in the body. उसके बाद we have the same systems. सब कुछ सेम है ना हम लोगों में. So बेटे ये 22 pairs हैं, they are of autosomes. We are only different on the basis of 23rd pair. तो बेटे हमारे पास 23rd pair है, वो हम मेल और फीमेल में डिफरेंट है. 23rd pair is of sex chromosomes. ठीक है, तो बेटे जो सेक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल वो तो दोनों सेम है, X and X. But in the case of male they are X and Y. ठीक है, so बेटे if in the exams you will get the photomicrograph of chromosomes और आपको कहीं भी you have to figure it out whether it belongs to a male or a female, you will just look for 23rd pair. That's it. अगर दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे तो वो फीमेल है, अगर दो डिफरेंट होंगे तो इट्स अ मेल. देखिए आपके पास मैंने जो प्रेजेंटेशन भेजी उसमें दोनों है. आपको मैंने भेजी ना माइटोसिस की, उसमें दोनों है. ठीक है, चलिए एनी क्वेश्चन अप टू हियर? यहाँ तक बात क्लियर है? अब मेरी बात आती है कि जो क्रोमैटिन था, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, और आपको पता है कि अगर हम देखें तो डीएनए को अगर कहते हैं कि एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर उसको अनकॉइल करें तो वी कैन गो फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड कम बैक फ्रॉम द मून टू द अर्थ. इतना बड़ा मॉलिक्यूल है. एंड बेटे दिस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस व्हिच इज जस्ट 6 माइक्रोमीटर. पता है ना आपको कि न्यूक्लियस का साइज कितना है? 6 माइक्रोमीटर्स. तो डीएनए का इतना एनॉर्मस मॉलिक्यूल है, हाउ इट इज प्रेजेंट इन दिस 6 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस. सो बेटे इसके अंदर बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए and this DNA is wrapped around something. ये किसी के इर्द-गिर्द wrapped है. So first of all, बेटे इसमें जो सबसे important चीज है वो you need to know कि जो DNA molecule है it is negatively charged. आपको पता है जो DNA molecule है due to the presence of the phosphate ये negatively charged है. अभी हम next chapter में भी पढ़ेंगे. So जो आपका DNA है ना बेटे, this is chromosome. ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम का इस वाले पार्ट को बनाऊं तो बेटे डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, क्रोमैटिन जो है बेटे दिस क्रोमैटिन इज रैप्ड अराउंड समथिंग एंड डेफिनेटली दिस इज डीएनए. ठीक है, दिस इज डीएनए एंड दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने सिंगल स्ट्रैंड बनाया था, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 18
genetic code which is present on the strand of DNA. अब बेटे ये जो आपका जो chromatin है, this chromatin is wrapped around a protein molecules and these proteins are called as histone proteins. This is chromatin, thread-like structure. This chromatin is wrapped around histone proteins. और बेटे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन. 8 molecules of histone protein. बेटे वो तो मैंने आपको खाली बताया था हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन है. अब वो हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 8. अब बेटे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 we have 8 histone protein molecules and बेटे these are, इसके इर्द गिर्द कौन रैप्ड है? आपका क्रोमैटिन. 1 2 ये आपका क्रोमैटिन इसके गेट रैप्ड है. सो बेटे क्रोमैटिन यहाँ पर 1/2 टर्न्स लेता है. Chromatin takes 1/2 turns around the histone proteins. ठीक है, पूरा 2 टर्न्स पूरे नहीं लेता, 1/2 टर्न लेता है और बेटे फिर वो नेक्स्ट किसके गिर्द रैप हो जाता है? नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन के. ठीक है, ये नेक्स्ट 5 6 7 जी बेटे दिस इज नॉट क्लियर टू यू? ओके बेटे मैंने क्या बोला कि ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, वो रैप्ड है हिस्टोन प्रोटीन के. आपकी जो मैंने प्रेजेंटेशन भेजी उसमें बड़ी अच्छी डायग्राम्स है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर फ्रॉम देयर. बेटे ये रैप्ड है, उसके लिए पहले पूरा एक टर्न लिया और दूसरा वो क्या लेता है? 2/3 लेता है और फिर वो सेकंड में चला जाता है. ठीक है, सो बेटे दिस इज क्रोमैटिन व्हेन इट रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन. बेटे इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम. और बेटे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस विल एक्चुअली गिव अ लीनियर स्ट्रक्चर टू डीएनए. मतलब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंटेंगल नहीं करता. अगर ये बेटे इस तरह से रैप्ड ना हो तो ये क्या हो जाएगा? इट विल गेट एंटेंगल्ड. एंटेंगल हो जाएगा तो क्या होगा? तो सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो मिक्स हो जाएगी. ठीक है, सो बस मैं यही पर अपनी बात खत्म करूंगी बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 3 मोर थिंग्स. एक तो हमने काइनेटोफोर की बात करनी है, वी विल टॉक अबाउट टेलोमेयर्स. दीज आर few new things which are present in this but बेटे न्यूक्लियोसोम का अभी तक what is the function of this nucleosome, it's not clear. But आपने ये बात याद रखनी कि जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, it is positively charged and your DNA is negatively charged. ठीक है, आपकी जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज है और बेटे आपका जो DNA है, this your DNA is negatively charged. ठीक है, सो कल हम यहीं से बात आगे चलेंगे लेकर, right? And we will talk about the rest of the things which are left right now and then we will start